नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और सबसे पहले आज के शो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स की, जहां पर नंबर्स आए हैं और दूसरी तिमाही के जो नंबर्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं, क्या की हाईलाइट्स रही हैं, आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। आगे की ग्रोथ को भी समझेंगे और साथ ही बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के आगे के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याणरमन। इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार रमेश जी, और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो पहले तो यही समझना चाहेंगे कि इस फेस्टिव सीजन में सेल्स कैसी रही हैं, सेकंड क्वार्टर कैसा रहा है और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद अब वेडिंग डिमांड को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे के लिए भी? So Q2 numbers are in front of you. Q2 has been good. Revenue growth has been strong. Overall revenue growth consolidated is around 27% in Q2. And as we speak, Q3, Diwali, 43 days of Q3, the revenue growth has been in the range of 35%. Momentum is strong. Footfalls are high at the store. And we think Q3 is also going to be good because there are a lot of weddings also coming up in November, December, and we expect that Q3 should end well. But of course, 35% should not be the guidance for the full Q3 because we are coming from a big base last year as well. साथ ही रमेश जी, अगर हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो अभी भी लिस्टेड प्लेयर्स काफ़ी कम हैं, लेकिन कई नई ज्वेलरी कंपनियां हैं जो आईपीओ लेकर आ रही हैं या फिर आईपीओ लाने की पूरी तैयारियों में है। ऐसे में कैसे देखते हैं आप इस पूरी इंडस्ट्री को? क्या कंपटीशन आगे बढ़ेगा? कैसे देखते हैं इस पूरे स्पेस को इस पर्सपेक्टिव से? Yes, so competition has been always there, and each region we have regional competitors. There are a few players who are strong in a particular region. If you look at a pan-India size, number of players are even now lesser because jewelry is a very hyper-local product, wherein pan-India players today who are powerful in each region or all regions are very minimal even as we speak today. And of course, there is a shift which is coming from unorganized segment. Meaning there's a huge space for the sector as we speak. ओके साथ ही अगर हम आगे की एक्सपेंशन को लेकर एक आउटलुक लेना चाहें तो क्या तैयारियां हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आपके 41 स्टोर्स हैं पैन इंडिया। आप अपनी प्रेजेंस को एनहांस करने पर फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन बाय ईयर एंड या फिर अगले एक साल के लिए कितने और नए स्टोर्स खोलेंगे? और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट्स के साथ साथ ओवरसीज मार्केट्स के एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लानिंग है? So Pan India, we had earlier announced 52 store launches in this financial year, out of which, as we speak, we have already opened 41, and we will be opening 9 more new showrooms in this quarter, Q3, and we will be adding 12 to 15 stores in Q4. The total being 65 new showrooms in this financial year in India. That is what is going to be for India. Middle East, we opened our first franchise store in the last quarter. We will be adding 2 more stores in the Middle East before the end of the financial year. We have signed 5 LOIs for franchise, out of which 2 will be opened in this financial year. ओके तो आप मिडिल ईस्ट में 2 नए स्टोर्स खोलेंगे और पैन इंडिया भी नंबर ऑफ स्टोर्स की संख्या बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर हम अब तक के सेल्स ट्रेंड्स को देखें ज्वेलरी सेगमेंट में कल्याण ज्वेलर्स के लिए, तो किस तरीके के रहे हैं? किस तरीके की ज्वेलरी की ज़्यादा डिमांड फिलहाल नज़र आ रही है? For studded, yes, studded growth is there. Studded, there are 2 major reasons for studded revenue share to improve. One is our own store or South Indian stores also, wherein there is an organic shift from customers who are buying plain gold to studded. Again, our expansion is also a major driver for studded revenue share to improve because expansion is majorly happening outside South India, and outside South India comes with a bigger studded ratio. So there are 2 levers for studded revenue improvement.
चलिए, शुक्रिया रमेश जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर, अर्निंग्स पर और आगे के आउटलुक पर कमेंट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स और आपके एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। तो ये तो रहे कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजमेंट आगे के ग्रोथ आउटलुक पर। लेकिन अगर हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें, स्पेशली गोल्ड सिल्वर की बात करें, तो इस फेस्टिव सेल्स से ज़्यादा एक्साइटमेंट वेडिंग सेल्स को लेकर इंडस्ट्री में बनी हुई है। अब देखना होगा किस तरह की ग्रोथ रहती है, बट हाल फिलहाल में जो भी कॉन्वर्सेशन हमारे तमाम एक्सपर्ट से हुआ है वो 10 से 15% की ग्रोथ ओवरऑल इस क्वार्टर में यानी दिसंबर क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें फेस्टिव प्लस वेडिंग डिमांड का कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता हैं, साथ ही गंगानगर कमोडिटी के एवीपी रिसर्च अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सोने की बात कर लेते हैं, जहां पर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गेन्स एक्सटेंड होते हुए देखे हैं। एक तरफ डॉलर थोड़ा सा फर्म हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से फर्म हुए हैं, और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का है वो भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि शायद फर्दर यहाँ से जो रेट हाइक ना होने की बात है वो और मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है, और इसीलिए हमने सपोर्ट आते हुए देखा है। घरेलू बाजार में प्राइस से 60,000 के ऊपर आ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1970 के आसपास कर रहे हैं ट्रेड। क्या व्यू है आपका अनुज, गोल्ड पर इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। देखिए डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 10 हफ्तों के लो लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से यूएस के जो डेटा आए थे उससे थोड़ा कूल ऑफ इन्फ्लेशन हुआ है, और उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में एफओएमसी इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखे। तो उससे काफी हद तक हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर को कमोडिटी को सपोर्ट मिला। इनफैक्ट बाकी एसेट क्लास को भी हमने सपोर्ट आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर पे रहेगा, और एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। तो बाई साइड का ही कॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमने देखा था कि पिछले दिनों में $1938 तक गोल्ड गया था, वहां से ऑलमोस्ट $20 से $25 की रिकवरी हमने देखी है। चांदी $22 तक चली गई थी दिवाली के टाइम पे, अब वहां से थोड़ी रिकवरी होती हुई दिखाई दी है। तो पिछले हफ्तों में थोड़ी बहुत हमने कूलनेस देखी थी, जो कि अब इस हफ्ते में एक रिकवरी के मोड पर आती हुई दिखी है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड हमें लगता है कि करीबन 60,025 के आसपास खरीदारी करें, 59,900 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 60,480 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1975 $1980 तक के लेवल आ सकते हैं। वहीं चांदी के अंदर भी करीबन 71,450 के आसपास खरीदारी करें, 70,980 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 72,300 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि करीबन $23.5 से लेकर $24 तक के लेवल आ सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स भी लग रहा है कि हमें एक बार 103 तक के लेवल पे ड्रैग हो सकता है। तो मोमेंटम हमें लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में जैसा कंटिन्यूस चलता हुआ आया है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। सिल्वर पर आपका ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा अमित? जी गुड मॉर्निंग तिवारी जी। मेरे को भी लगता है कि प्राइसेस जो है अभी थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूवमेंट करेंगे। जिस तरीके के डेटा कल यूएस की तरफ से आए हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में एक पॉज जो है दर्शा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में भी एक करेक्शन देखने को मिला है। एज पर लेवल अगर मैं बात करूं तो 71,700 के आसपास दिसंबर वाले सिल्वर में एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। 71,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर प्राइस मेरे को लगता है 1 से 2 दिनों में 72,700 रुपए तक टेस्ट कर सकते हैं। जी देखा। अच्छा, बात कर लेते हैं अब कच्चे तेल की, जहां पर मिडिल ईस्ट टेंशंस के बीच में हमने क्रूड में काफ़ी उठापटक देखी है। प्राइसेस अब इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $83 के आसपास है। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो 6500 के आसपास, इन्हीं लेवल्स के आसपास इनफैक्ट पिछले कुछ सेशन से घूमता हुआ दिखाई दिया है। अनुज, क्या स्ट्रैटेजी अब कच्चे तेल पर, क्या रेंज आप देख रहे हैं अगले कुछ दिनों के लिए, और ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशन रहेगा? देखिए एक तो ओपेक मेंबर्स की मीट है, डेफिनेटली उससे एक नया क्लू मिलेगा। मगर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो नीचे में $78, ऊपर में करीबन $85 ये रेंज मार्केट ने बनाई है। और कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़े से एस्केलेट हुए हैं उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। और जैसे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि $78 के आसपास से बाइंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो वही बाइंग एक्टिविटी हमने क्रूड में आती हुई देखी है। हालांकि कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक वाइज देखेंगे तो जो सप्लाई है वो बढ़ी है। हालांकि अभी यूएस ने भी अपने स्ट्रेटेजी रिजर्व में क्रूड को ऐड किया है, वहां से खरीदारी करी है, तो एक वहां से भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक जो है वो क्रूड में कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी की कॉल रहेगी, करीबन 6,480 में खरीदारी करें, 6,425 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 6,570 तक हो सकता है। हमें लगता है कि $83-84 तक के लेवल आपको क्रूड में देखे जा सकते हैं। डिमांड थोड़ा सा बड़ा है जिसका सपोर्ट है, और आगे विंटर सीजन की डिमांड भी रहेगी, उससे भी असर आता हुआ दिखाई दिया है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक मोमेंटम जो है वो थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखने को मिल सकती है। ओके, नेचुरल गैस में भी एक राय ले लेते हैं, जहां पर प्राइसेस वापस से थोड़े से अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए। 256 के आसपास घरेलू बाजार में ट्रेड कर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में $3 के आसपास भाव है।
अमित, क्या सजेशंस नेचुरल गैस पे इन लेवल से? हाँ बिल्कुल दीपाली जी, करंट जो वायदा है अभी 256 के आसपास है, इन स्टॉक पे ट्रेडर्स को खरीदारी का ट्रेंड लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है अभी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो मेरे को लगता है 280 से 285 तक के प्राइस इसमें टेस्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेडर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहे तो इसमें मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, उसमें भी ट्रेड बनाया जा सकता है। 250 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपाली। ओके, अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर थोड़ा सा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। जिंक में, एल्यूमिनियम में जिंक 231 के आसपास है, 206 के आसपास कर रहा है एल्यूमिनियम ट्रेड, और कॉपर भी 709 के लेवल्स पर है। तो पूरे ही बेस मेटल पैक में हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। 0.5% ऑन एन एवरेज गेन्स इन सभी कमोडिटीज में देखने को मिल रहे हैं। पहले राय ले लेते हैं जिंक पर। अनुज, क्या सजेशन जिंक पर? कंपैरेटिवली बेटर प्लेस रहा है तमाम बेस मेटल्स में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन स्तरों से? देखिए, जिंक में काफी अच्छा मोमेंटम रहा है एज कंपेयर। अगर आप कॉपर से कंपेयर करेंगे तो जिंक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टेक्निकल बायस जो है वो पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे रह सकता है। तो जिंक में खरीदारी करना चाहिए करीबन 229.50 के आसपास। जो स्टॉप लॉस है 227 का लगा है। टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर में 233 234 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। बेस मेटल में एक रिकवरी भी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जिंक एक अच्छा काउंटर हो सकता है जहां पे खरीदारी का ट्रेड बेस मेटल में लिया जा सकता है। ओके, आपको ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल पैक से अमित, स्पेशली एल्यूमिनियम या कॉपर पर? जी दीपाली, कॉपर में मेरे को काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अभी इसने काफी समय बाद जो है 10 रुपए के ऊपर वापस फिर से ट्रेड किया है। तो मेरे को लगता है 709 के करीब एक बार ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 704 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें 717 तक के टारगेट जो है 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी ओके, अच्छा अनुज, एज अ बेस मेटल पूरा ही पैक, यहाँ से अगर एक थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक लेना हो तो कैसे लग रहा है ये पूरा ही स्पेस? देखिए, एक स्पेस जो बेस मेटल का पैक है थोड़ा सा पॉजिटिव हमें लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, डॉलर इंडेक्स 10 हफ्तों के लो लेवल पर आया, और चाइना में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी हमने देखी है। जीडीपी के नंबर्स भी उनके लास्ट जो आए थे वो काफी थोड़े पॉजिटिव थे। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा काउंटर है ये पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आपको एक अपसाइड मोमेंटम रह सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉपर और जिंक मुझे लगता है कि अच्छे काउंटर रहेंगे जहां पर खरीदारी का ले सकते हैं। हालांकि एल्युमिनियम भी पॉजिटिव बायस में, बट मुझे लगता है कि जिंक यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद कॉपर के अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कॉपर काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 700, ऊपर में 720। तो ये रेंज अगर ब्रेकआउट लेता है 720 के ऊपर में तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट हाँ, जिंक और कॉपर मुझे लगता है कि अच्छी टेरिटरी में, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको पॉजिटिव साइड में देखा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो राय रही कॉपर पर, और एक राय डॉलर इंडेक्स पे भी ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोडिटीज़ के मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा सा वीकर तो हुआ है, लेकिन यहाँ से नियर टर्म रेंज क्या बन रही है इस पर एक आउटलुक लेते हैं। अनुज, अगेन क्या कमेंट्स हैं आपके डॉलर इंडेक्स पर? क्या रेंज नियर टर्म में देख रहे हैं? देखिए, डॉलर इंडेक्स हमें लगता है कि नीचे में 103 के लेवल तक आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो डेटा आए हैं वो थोड़े से यहाँ पर सपोर्टिव है। उसकी वजह से हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो बात है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो उसके कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी गई है। तो हमें लगता है कि नीचे में 103 और ऊपर में 105 ये एक रेंज रहेगी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, और हो सकता है कि इस महीने के लिए इंटैक्ट रहे। वहीं अगर आप देखेंगे तो रुपी यहाँ पे थोड़ा अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया, और हमें लगता है कि रुपी फर्दर अप्रिशिएट हो सकता है डॉलर इंडेक्स की गिरावट के साथ। तो एक एप्रिशिएशन का जो मोड है रुपी में देखा जा सकता है, और रुपी हमें लगता है कि नीचे 82.80 और ऊपर में 83.30 इस रेंज में ट्रेड हो सकता है। एप्रिशिएशन हमें रुपी में देखने को मिल सकता है, और डॉलर इंडेक्स 103 तक के लेवल के आसपास तक एक्सपेक्टेड है कि मूव हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही डॉलर इंडेक्स पर और नियर टर्म रेंज पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, साथ ही स्ट्रैटेजीज लेंगे, कहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे शुगर पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।
आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे शुगर की। दरअसल सरकार ने घरेलू चीनी कोटा का जो दूसरा ट्रांच है वो जारी किया है और 8 लाख मेट्रिक टन का कोटा इस बार जारी किया है। ऐसे में क्या फेस्टिव सीजन और शादियों में मांग और कीमतों में इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एग्री मंडी के को फाउंडर और डेप्यूटी सीईओ हेमंत शाह। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो कल मंत्रालय ने ये दूसरा कोटा जारी किया है। अब अगर हम फेस्टिव सीजन की ही बात करें तो किस तरीके की डिमांड अब तक रही है, कैसी डिमांड एक्सपेक्टेड है, और जो ये मूव लिया गया है क्या ये उस एक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करने के लिए पर्याप्त होगा? जी नमस्ते दीपाली जी। पहले तो आप सभी को, आपकी पूरी टीम को और हमारे सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो गवर्नमेंट ने कल जो 8 लाख मेट्रिक टन का जो कोटा रिलीज किया है, तो उसके पहले ये जो था वो सेकेंड ट्रंच था, लेकिन फर्स्ट ट्रंच में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 15 लाख मेट्रिक टन का कोटा दिया है और जिसकी वैलिडिटी थी 15 नवंबर, और कल ये 8 लाख का। तो टोटल कुल मिला के अगर नवंबर की बात करेंगे तो 23 लाख मेट्रिक टन का ये कोटा हो रहा है। अभी यहाँ पे विथ एक्सटेंशन ये कोटा कैरी फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन जहां तक ये बाजार की खबरें हैं, सो चीनी के दाम भी अच्छे थे, फेस्टिवल डिमांड भी अच्छी थी, तो ज्यादातर चीनी मिलों ने अपना जो कोटा था वो सोल्ड आउट कर दिया है। लेकिन फिर भी 1 से 1.5 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हो सकता है कि जिसका एक्सटेंशन मिला है। अक्टूबर में हमने देखा है कि 29 लाख मेट्रिक टन का कोटा था, उसके सामने नवंबर का अगर टोटल देखेंगे तो 23 लाख मेट्रिक टन का ही कोटा है। सो डिमांड के हिसाब से ये कोटा कम जरूर है, लेकिन यहाँ पे गौर करने की और एक बात है कि जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्रशिंग सीजन, ऑल ओवर इंडिया में क्रशिंग सीजन चालू हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका में कई मिल वाले कोटा फॉलो नहीं कर पाते हैं, कि जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सप्लाई भी मार्केट में आता है। तो जरूर कोटा थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन उसके सामने सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो फिर ऐसे में प्राइसेस, देखिए जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इसीलिए कि प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहे, लेकिन अभी भी हमने देखा है कि कई राज्यों में भी कई स्टेट्स में प्राइसेस सर्ज हुए हैं। इस मूव के बाद एक्सपेक्ट करें, जैसे आप कह रहे हैं सप्लाई साइड पर चिंता नहीं दिख रही है, प्राइसेस थोड़े हल्के होंगे? ये जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कल ये 8 लाख मेट्रिक टन का जो कोटा जब अनाउंस हुआ, उसके बाद में ओवरऑल मार्केट जो है वो 25 से 30 रुपया प्रति क्विंटल मार्केट बढ़ चुका है, और अभी भी हमें ऐसा लगता है कि और 20 से 25 रुपया मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कई मिल वाले जो एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करते हैं कोटा, कि जिससे सप्लाई जो है मार्केट में एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें ये लगता है कि कोल्हापुर मार्केट जो है वो S30 3600 3650 के रेंज में ही रहेंगे। ओके अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे। चलिए, तो एक नियर टर्म आउटलुक की बात हुई, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक समझना चाहे, कंसीडरिंग इस साल का जो शुगर प्रोडक्शन है वो कम रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ऐसे में प्राइसेस अगर थोड़ा सॉफ्ट हुए भी तो मेंटेन होंगे, या फिर ऑन अ लॉन्गर पिक्चर प्राइसेस हायर साइड पर ही दिख रहे हैं? जी देखिए, ओवरऑल अगर हम शुगर के प्राइसेस की बात करेंगे तो शुगर का क्रशिंग सीजन जो है अभी नवंबर से चालू हो गया है। अब तक जो है ऑल ओवर इंडिया में 220 शुगर फैक्ट्रीज के क्रशिंग चालू हो गया है, जो जिसमें प्रोडक्शन निकलना चालू हो गया है। कमिंग 1 से 2 वीक में ऑल ओवर इंडिया पूरा फुल फ्लेज में क्रशिंग सीजन चालू हो जाएगा। और जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस बार इंडिया का प्रोडक्शन जो कम लग रहा है, सो हमारा जो रिसर्च है, एग्री मंडी का जो रिसर्च है, वो हिसाब से जो प्रोडक्शन के जो फिगर्स है वो है 30 मिलियन मेट्रिक टन के। ये क्रशिंग सीजन जो चालू रहेगा वो जनवरी तक रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और तब तक हमें ये लगता है कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, या फिर थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो सकते हैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से। लेकिन अगर जनवरी के बाद अगर देखेंगे तो शुगर के प्राइसेस में हम लोग अपसाइड देख सकते हैं। ओके, तो जनवरी के बाद प्राइसेस वापस थोड़ा सर्ज हो सकते हैं, ये एक ब्रॉडर आउटलुक आपको मिला। शुक्रिया हेमंत जी बातचीत करने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। अमित, एग्री बास्केट से कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे? जी दीपाली, एग्री बास्केट में जो सबसे बढ़िया ट्रेड अभी नजर आ रहा है वो ग्वारसीड ग्वारगम का है। लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो ग्वारगम 11,500 दिसंबर वाइडा एक खरीदारी का बढ़िया लेवल है। 11,200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 12,000 का है।
दूसरा ट्रेड जो अगर मैं लेके चलूंगा तो धनिया काफी अच्छा बुलिश जो है पोजिशनली भी यहाँ से नजर आ रहा है। 8,000 का भाव अभी आसपास है। 7700 से 8,000 की रेंज में इसमें पोजिशनल ट्रेडर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म या पोजिशनल के बेसिस पर देखूं तो 96 के लेवल भी मेरे को धनिया में नजर आ रहे हैं। जी दीपाली। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग व्यू कोरिएंडर पर, जहां प्राइसेस 2.5% ऊपर आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए। शुक्रिया अनुज और अमित, आप दोनों का ही शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।